ناظرین آداب، بدلتے منظر کے شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ریاست جموں کشمیر میں عوامی خدمات سے منسلک شعبہ جات کی بدلتی رفتار کا سرسری جائزہ پیش کیا جائے۔ تو آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اس شمارے کے اہم موضوعات پر۔ سری نگر میں کھانا پکانے کا منفرد پیشہ ورانہ مقابلہ منعقد۔ جموں میں 3 روزہ پیک ٹیک ایشیا 2024 میلہ۔ سری نگر میں بال بیڈمنٹن چیمپئن شپ کا انعقاد۔ پنچ کے کھانا تیر گاؤں میں مفت طبی کیمپ کا انعقاد۔ ضلع وولر ماحول دوست سیاحتی مرکز میں تبدیل ہونے کے لیے تیار۔ وادی کشمیر میں شیف کلچر کو فروغ دینے کے لیے کھانا پکانے کے حوالے سے اپنی نوعیت کا منفرد پیشہ ورانہ مقابلہ منعقد کیا گیا۔ اس دلچسپ مقابلے کا اہتمام انسٹیٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ سری نگر نے اپنے ہی انسٹیٹیوٹ میں کیا تھا۔ اس میں حصہ لینے والی خواتین شیف نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنے منفرد فن کا مظاہرہ کیا۔ اس ایونٹ کے حوالے سے کشمیری پیشہ ور خواتین شیف کن خیالات کا اظہار کر رہی ہیں، آئیے جانیں گے۔ وادی کشمیر کی بدلتی تصویر کے بیچ سری نگر میں کھانا پکانے کے حوالے سے اپنی نوعیت کا منفرد پیشہ ورانہ کوکنگ مقابلہ منعقد کیا گیا۔ اس کوکنگ مقابلے کا بنیادی مقصد وادی کشمیر میں شیف کلچر کو فروغ دینا ہے۔ اس مقابلے کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں خواتین شیفز نے حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہترین پہل ہے کیونکہ جس کے پاس اسکل ہے وہ آگے بڑھ کر اپنا سٹارٹ اپ شروع کر سکتا ہے۔ یہ بہت ہی اچھا ہے، مطلب جن کے پاس بھی یہ اسکل ہے وہ یہاں پہ شو کر سکتے ہیں تاکہ وہ آگے جا کے اپنا کچھ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وازوان سے الگ جو ہے ہم اور بھی ڈشز بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں وہ موقع مل گیا، اس لیے ہم تھینک یو کرنا چاہتے ہیں ہوم شیف جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ اس میں پارٹیسپیٹ کیجئے، اور اس میں اگر ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، کم سے کم جو ایک ملتا ہے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اپنی نوعیت کے اس کوکنگ مقابلے میں کھانا پکانے والی پیشہ ور خواتین نے حصہ لیا اور اپنے منفرد فن و ہنر کا بہترین مظاہرہ کیا۔ اس دلچسپ مقابلے کا اہتمام انسٹیٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ سری نگر نے اپنی ہی انسٹیٹیوٹ میں کیا تھا۔ اس ایونٹ کے حوالے سے کشمیری پیشہ ور خواتین شیف کہتی ہیں کہ وادی کشمیر میں پہلے ایسے مواقع دستیاب نہیں تھے جہاں خواتین اپنے ہنر کا مظاہرہ کر سکتیں۔ اب ایک پلیٹ فارم مہیا ہو رہا ہے اور وہ بھی اپنے خوابوں کو اڑان دے سکتی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے ہوم شیف کی طرف سے، اس سے جو ہے ہمارے ہوم شیفز کو ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی کوکنگ اپنی شو کیس کر پا رہے ہیں یہاں پہ، اور اس سے ہم اپنے وازوان کو بھی آگے لے سکتے ہیں ود ڈفرینٹ انوویشنز، ہم ان کو ریسٹورینٹ لیول پہ ریپریزنٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے جاب اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوتی ہیں جو ہمارے ہوم شیفس ہیں جن کو کہ ریکگنیشن نہیں ملتا ہے، تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ان کو ریکگنیشن دیتا ہے اور اس میں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ کوکنگ کرنا آج کے دور میں صرف ایک شوق یا جذبہ نہیں ہے، بلکہ یہ شوق یا جذبہ ایک عظیم اور باوقار پیشے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ خواتین کا کہنا ہے کہ وہ کھانا جذبے سے بناتی ہیں۔ حکام نے بتایا کہ اس مقابلے کے لیے شفافیت کے ساتھ انتخاب عمل میں لایا گیا اور مستقبل کو سنوارنے کے لیے یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 100 شیفز نے آن لائن رجسٹریشن کی، جن میں سے بہترین 18 کا انتخاب سیمی فائنل کے لیے عمل میں لایا گیا اور فائنل میں 6 شیفز پہنچ گئیں۔ اس میں اسپیشلٹی یہ ہے کہ ہوم شیفز کے لیے کمپٹیشن ہے جن کو ہم اکثر اپریشیٹ کرنا بھول جاتے ہیں۔ گھر میں ہم 2 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں، کبھی کبھار ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آج چکن اچھا بنا تھا، مٹن اچھا بنا تھا۔
उनको एक नेशनल लेवल पे ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने अपने स्किल्स को शो किया, और ये ऐसा नहीं था कि टेक्निकल राउंड्स थे जहाँ हमने उनको मिस्ट्री बॉक्स दिया था। तो मुझे लगता है ऐसे कॉम्पिटिशन्स और भी बहुत ज़्यादा होने चाहिए, और वो यहाँ इतना कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं कि वो अपना फूड बिजनेस, जिसने पहले सीज़न में एक लेडी थी जो विनर, उसने क्लाउड किचन शुरू करा, इस सीज़न में फाइनलिस्ट एक है, उनका ऑलरेडी क्लाउड किचन चल रहा है। तो इन्हें प्लेटफॉर्म के साथ साथ एक रिकग्निशन मिलता है, जो एक बिज़नेस शुरू करने के लिए, अपने स्किल्स को निखारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मुकाबले में कई तरह के पकवान बनाए गए, जिनका जायजा माहिर शेफ्स ने लिया और मुकाबले के दौरान बेहतरीन कुकिंग करने वाले का इंतखाब किया गया। हाल ही में मास्टर शेफ इंडिया में शिरकत करने वाली पहली कश्मीरी खातून शेफ डॉक्टर रुखसार सईद ने रियलिटी शो के 8वें शुमारे में सेकंड रनर अप का खिताब अपने नाम करा के कामयाबी की नई तारीख रकम की थी। PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने महकमा सन्नत व तिजारत के इश्तराक से शुमाली हिंदुस्तान का पैकेजिंग, प्रिंटिंग और फूड प्रोसेसिंग के शोबे बैन अक़वामी खरीदारों से राबिता कायम करने के लिए पैकटैक एशिया एक्सपो एंड रिवर्स बायर सेलर का एहतमाम किया। अपनी नोवियत के इस तिजारती प्रोग्राम में 100 से ज़्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर नौजवान एंटरप्रेन्योर्स ने मुख्तलिफ नोवियत के स्टॉल्स भी लगाए। मकसद जानने के लिए आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की रीगल पार्क में पैकटेक एशिया 2024 मेले का एहतमाम किया गया। पैकटेक एशिया एक ऐसी नुमाइश है जो मुख्तलिफ सन्नतों के लिए जदीद तरीन पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज, मशीनरी और आलात की नुमाइश के लिए सन्नतकारों और ताजरों को एक छत के नीचे लाती है। इस नुमाइश के दौरान मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जिससे नौजवान एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी कारोबारी और तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। दिस इवेंट इज बेसिकली अ रिवर्स बायर सेलर मीट, और इसके जो यूएसपी है, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो ये हैं कि ये 60 प्लस ओवरसीज नेबरिंग कंट्रीज से जो बायर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं, हमारे बीच में हैं। अलग अलग कंट्रीज से, श्रीलंका से, नेपाल से, आपके और जो नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ से आए हैं, और दिस इज़ अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद देम। और इनको मैं तो कहूँगा रादर ये हमारे जम्मू कश्मीर के लोकल बिजनेसमैन, लोकल इंडस्ट्रीज, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो यूजर्स हैं पैकेजिंग के, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। राहुल सहाय ने PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नुमाइंदगी करते हुए PHDCCI जम्मू चैप्टर के चेयरमैन के तौर पर नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर तमाम हाज़रीन को तहे दिल से मुबारकबाद पेश की। इस इवेंट में बढ़ते हुए हिंदुस्तानी पैकेजिंग इंडस्ट्री की निशानदेही की गई, जो 2025 तक $32 बिलियन के कारोबार तक पहुंचने के लिए तैयार है। यहाँ पे 80% बाहर की कंपनीज हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उनको भी ये आइडिया हो जाता है कि भाई जम्मू इज़ अ सिटी जहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसे ब्रांड्स काम कर रहे हैं, ऐसे टाइप के सेटअप्स हैं, तो उनके लिए भी इट इज़ अ डिसाइडिंग फैक्टर कि यार दे कैन सेट अप अ प्लेस हेयर टू जनरेट मोर बिजनेस। एंड फॉर जो स्टॉल लगा रहा है उसके लिए भी, बिकॉज जो एग्जिबिटर है वो तो बाहर से आ रहा है, बट जो ऑडियंस है वो तो सारी लोकल ही है ना, तो लोकल ऑडियंस के लिए लोकल एक स्टॉल, दे आर इजी टू रिलेट एंड दे फील मोर कंफर्टेबल। 3 रोजा पैकटेक एशिया 2024 मेले में 100 से ज्यादा नुमाइश कुनंदगान, 60 गैर मुल्की खरीदारों और 1000 कारोबारियों ने नुमाया तौर पर शिरकत की। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और मिस्र समेत मुख्तलिफ ममालिक के गैर मुल्की खरीदारों और मंदोबीन ने नुमाइश कुनंदगान के साथ नतीजा खैज मुलाकातें की, जो इवेंट की बैनुल अक़वामी अहमियत को उजागर करती है। सन्नत और तिजारत के सेक्रेटरी विक्रमजीत सिंह ने इन अहम शोबों की तरक्की के लिए साजगार एक मुआविन माहौलियाती निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत के अज़म को उजागर किया।
हमारे पास करीब 100 एग्जीबिटर्स हैं यहाँ पे जो पैन इंडिया से हैं, जम्मू से भी हमारे पास लोकल पार्टिसिपेंट्स हैं, और जो 9 कंट्रीज से बाहर आए हैं उनके इंटरेक्शन से जो आज पहले दिन का इंटरेक्शन रहा है उसमें काफ़ी अच्छी बिजनेस इंक्वायरीज जनरेट हुई हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे लगता है जिस तरह का सपोर्ट आज हमें गवर्नमेंट की तरफ से दिखाया गया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री साहब की तरफ से, डिविजनल कमिश्नर साहब की तरफ से, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज की तरफ से, MD JKTPO साहब की तरफ से, तो हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ की इंडस्ट्रीज को काफ़ी ग्रोथ मिलेगा। इस इवेंट को मुनाकिद कराने का बुनियादी मकसद जम्मू कश्मीर के नौजवान कारोबारियों को बाइख्तियार बनाना और उनके लिए ज्यादा से ज्यादा कारोबार के मौके पैदा करना है। साउथ इंडिया का मकबूल तरीन खेल बॉल बैडमिंटन कश्मीर में भी आहिस्ता आहिस्ता नौजवानों का पसंदीदा खेल बनता जा रहा है। इस सिलसिले में हाल ही में यूटी सतह की एक बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। ये इवेंट गिंदन स्पोर्ट्स स्टेडियम राजबाग श्रीनगर में मुनक्किद हुआ, जिसमें वादिया कश्मीर के सभी 10 अजला से ताल्लुक रखने वाली टीमों और खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। गिंदन स्पोर्ट्स स्टेडियम राजबाग श्रीनगर में यूटी सतह की बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। इस इवेंट में वादिये कश्मीर के सभी 10 अजला से ताल्लुक रखने वाले नौजवान खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थीं। खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें इस खेल में भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे यूटी लेवल पे टूर्नामेंट होने वाला है बॉल बैडमिंटन का, तो उसी के रिलेटेड हम यहाँ आए हैं। हमारे स्कूल के जितने भी प्लेयर्स हैं जो इंटरेस्टेड थे वो यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे आके हमें बहुत ज़्यादा वो अलग ही फील आया कि यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है इस गेम का। बेसिकली इस गेम के बहुत सारे मेरिट्स हैं, मेरिट्स ये खाली इसके, क्योंकि इस गेम से क्या होता है कि हमारा जो मेन सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम, वो डेवलप होता है, और जो हमारा मोटर सिस्टम है उस पर वर्क होता है। बॉल बैडमिंटन साउथ इंडिया का एक मकबूल तरीन खेल है। बॉल बैडमिंटन खेलने के लिए 10 खिलाड़ियों की जरूरत होती है, जिनको 5 खिलाड़ियों की 2 टीमों में तकसीम किया जाता है। यानी एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं जो बैक वक्त खेलकर अपने हरीफ को जेर करने में अपना पसीना बहाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसमें खेलते कैसे है, बेसिकली ईच टीम में 5 प्लेयर होते हैं, और खेलते सर्विस जब डालनी होती है तो एक टीम एक साइड में जाते हैं और दूसरे कॉर्नर डायगनली सर्विस डालनी होती है। एंड इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनली भी खेल सकते हैं। इसमें जॉब्स भी आगे लगती है, इसी फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड में भी जाते हैं। तो आपको कैसा लगा पार्टिसिपेट? मुझे अब 3 साल हो गए खेलते हुए, एंड आई थिंक इट इज़ द बेस्ट गेम आई हैव एवर प्लेड। आना चाहिए बच्चों को? हाँ, आना चाहिए, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि कश्मीर में ये खेल 2007 को मुतारिफ कराया गया था। उन्होंने कहा कि जब से लेकर अब तक मुसलसल इस खेल के इवेंट्स यहाँ मुनाकिद किए जाते हैं। इस इवेंट में कश्मीर के सभी 10 अजला से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ये यूटी लेवल बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप है, तो इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हुए हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो गेम है एक्चुअली ये साउथ इंडिया की गेम है, और यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ 2007 से। तो कंटिन्यूस तब से लेकर आज तक इसके टूर्नामेंट्स होते रहे हैं। पिछले कई सालों से कोविड के बाद इसमें कंटिन्यू हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा डिस्ट्रिक्ट होता रहता है। इस साल पे हमने करीबन 12 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट किए हैं अभी तक। तो आज ये यूटी लेवल चैंपियनशिप यहाँ पे इनेकाद हो रही है। तो कहाँ से बच्चे आए थे? इसमें कश्मीर डिवीज़न के सभी डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हैं, चाहे बड़गाम, बारामूला, शोपियान, कुलगाम, पुलवामा, जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं कश्मीर डिवीज़न के, कश्मीर प्रोविंस के, वो आए हैं इसमें। बॉल बैडमिंटन कश्मीर में भी आहिस्ता आहिस्ता नौजवानों का पसंदीदा खेल बनता जा रहा है। टूर्नामेंट का एहतमाम स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू कश्मीर ने बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के ताउन से किया था। जम्मू कश्मीर के सरहदी व पहाड़ी जिला पुंछ में सरहदी देहात में रिहाइश पजीर लोगों की सहूलियत के लिए BSF ने आउटरीच प्रोग्राम के तहत एक तिबी कैंप मुनक्किद किया। मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टरों ने लोगों की बड़ी तादाद, जिनमें खवातीन भी शामिल थी, का तिबी मुआयना किया। लोगों में बीमारियों के मुताबिक अद्वियात भी तकसीम की गई। लोगों ने इस इक़दाम को सराहा। पेश है इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर के खिता पीर पंचाल में वाक़ा पहाड़ी व सरहदी जिला पूंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक देहात में रिहाइश पजीर लोगों की सहूलियत के लिए सरहदी हिफाजती फोर्स BSF की जानिब से एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनाकाद अमल में लाया गया। BSF ने इस मुफ्त तिब्बी कैंप का इनाकाद सिविक एक्शन और आउटरीच प्रोग्राम के तहत अमल में लाया। मकामी लोगों ने BSF के इस इक़दाम को सराहा। ये कैंप खानातर गांव में मुनाकिद किया गया। आज BSF ने यहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है और इस कैंप का ऑर्गेनाइज करने का मकसद यही है कि लोगों को मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात मेडिसिन जो है फ्री दे रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ हैं तो उनके खात्मे के लिए डॉक्टर जो हजरात एक टीम आई हुई है वो फ्री चेकअप हो रहा है और मेडिसिन मिल रही है। हम मशकूर ममनून हैं BSF 141 BSF के और हेडमास्टर साहब खरेतर जिन्होंने जहाँ पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मुनाकिदा मुफ्त तिब्बी कैंप में सरहदी और कंडी देहात से ताल्लुक रखने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद ने शमूलियत की, जिनका मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टरों ने इलाज मुआलजा किया और उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गईं। मकामी बाशिंदों ने BSF के इस इक़दाम को सराहा और कहा कि इस तरह के कैंप वक्तन फवक्तन मुनक्किद किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि BSF की जानिब से दूर दराज और पसमानदा इलाके में इस तरह के मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्किद किए जाने से गरीब लोगों को काफी राहत पहुंची है। ये तो कम BSF वालों ने बड़े अरसे से यहाँ लगाना शुरू किया। हम इस बटालियन के मशहूर हैं कि इन्होंने आज तकरीबन 150-200 मरीजों को जो है वो चेकअप करवाया और फ्री में दवाइयाँ जो दे रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। हम मशहूर हैं BSF के CO साहब के। ये 148 बटालियन जो नई आई है बड़े तनदेही से और बड़ी मेहनत से लोगों के साथ ये कोऑपरेट कर रही है और लोगों को काम कर रही है। BSF के आला अफसर ने तिब्बी कैंप के इनाकाद के हवाले से बताया कि BSF इस इलाके में मजीद ऐसे कैंप मुनाकिद करेगी क्योंकि ये इलाका इक्तिसादी तौर पर काफी पसमानदा है। यहाँ सेहत आमा के हवाले से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दामात से अवाम के साथ राबिता भी बढ़ जाता है, जबकि ऐसे प्रोग्राम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत किए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये कोशिश करती है कि जितने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं इसके अंदर बेहतर मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जाए। इसके तहत हमने जो नजदीक के गांव हैं इन सबको एक जगह इकट्ठा करके इनका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। तो इसके अंदर हमने एक तो रखा हुआ है जिनको कोई तकलीफ वगैरह है तो सिविल के डॉक्टर हैं, BSF के डॉक्टर हैं, उनको इलाज कर रहे हैं और उनको हम लोग जो है दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा इनका हम ब्लड टेस्ट भी कर रहे हैं, BP चेक कर रहे हैं ताकि शुगर और हीमोग्लोबिन का उनको पता चल जाए और अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी दवाइयाँ या उसका जो ट्रीटमेंट है वो किया जा सके। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर बच्चों को भी फिजिकल मेजरमेंट और उनकी आई साइट वगैरह चेक कर रहे हैं। आई स्पेशलिस्ट आ रखे हैं यहाँ पे ताकि अगर किसी को फोर्स के प्रति अगर इंटरेस्ट है तो अभी जो है उसको जानकारी हो जाए कि वो फिट है और अगर उसमें कुछ कमी पेशी है जैसे हाइट किसी की थोड़ा बहुत कम है तो किस तरह से एक्सरसाइज करके अपनी हाइट को बढ़ाया जा सकता है। सरहदी देहात से अस्पताल काफी दूर हैं और मामूली तिब्बी मुआयने के लिए भी यहाँ के बाशिंदों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुस्तक़बिल करीब में भी BSF पूंछ में वज़ारत दिफा के ताउन से ऐसे मजीद तिब्बी कैंप मुनक्किद करने का इरादा है। वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एशिया की सबसे बड़ी कुदरती झील के हसीन नज़ारों की तरफ सयाहों को राग़िब करने के लिए एक जामा मंसूबा तरतीब दिया, जबकि इस मंसूबे का बुनियादी मकसद झील की कुदरती खूबसूरती के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना भी है। यहाँ सयाहों की सहूलियत के लिए ढल झील की तर्ज पर शिकारे नस्ब किए गए हैं और झील का नज़ारा करने के लिए एक बेहतरीन व्यू पॉइंट भी तामीर किया गया। सयाहों और मकामी लोगों का इस बारे में क्या कहना है, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सयाहत को फरोग देने और कुदरती खूबसूरती को बढ़ाने के इक़दाम में वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी एशिया की सबसे बड़ी कुदरती वुलर झील को डल झील के मशहूर बुलवाड़ की तर्ज पर याद रखने के लिए तैयार करने में मसरूफ है।
इस प्रोजेक्ट का जो इस वक्त जोरों पर है का मकसद वुलर झील के अतराफ में बुलवार तर्ज पर एक माहौल दोस्त मोटरेबल वॉकवे बनाना है। ये इक़दाम इलाके को पुरकशिश मरकज में तब्दील करने की कोशिशों के सिलसिले का एक हिस्सा है। यहाँ पे मैं वुलर लेक पे विजिट किया और यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वुलर लेक काफ़ी फैला हुआ है। ये वुलर लेक आप जितना दूर देखेंगे उतना दूर ये फैला हुआ है और यहाँ से माउंटेन व्यू आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा माउंटेन व्यू आ रहा है और माउंटेन्स में स्नो पड़ी हुई है और एज ए टूरिस्ट आपको यहाँ आना चाहिए। यहाँ काफ़ी अच्छा लगता है आके, लगता है कि आप कहीं आए हैं और ऐसी जगह आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आप और भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे आप शिकारा में विजिट करके आप पूरे वुलर लेक का व्यू देख सकते हैं और काफ़ी फैला हुआ वुलर लेक है। झील वुलर में सयाहों की सहूलियत के लिए डल झील की तर्ज पर शिकारे भी नस्ब किए गए हैं, जबकि एक लाजवाब व्यू पॉइंट भी तामीर किया गया है। यहाँ आने वाले सयाह कुदरती झील वुलर के हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज होते हैं और वो व्यू पॉइंट पर यादगारी तस्वीरें भी बनाते हैं। सयाह यहाँ आकर काफी खुशी महसूस करते हैं। तो आज मैं यहाँ पे वुलर लेक में आई हूँ। फर्स्ट विजिट है मेरा पहले यहाँ का। तो बच्चों ने किताबों में सुना हुआ था वुलर लेक, तो सोचा आते हैं यहाँ पे, कैसा जाते हैं यहाँ पे। तो बट बहुत अच्छा है, मतलब आप अगर यहाँ पे आएंगे विजिट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं माउंटेन्स में कितना अच्छा बर्फ गिरी हुई है, बहुत अच्छा व्यू लगा मुझे, काफ़ी अच्छा लगा। और इसे मैं टूरिस्ट से ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे आइए कश्मीर में, यहाँ का जो व्यू है देखिए यहाँ पे। हुक्काम का कहना है कि मोटरेबल नए वॉकवे और दीगर मंसूबे न सिर्फ झील को मजीद काबिल रसाई बनाएंगे, बल्कि ये सयाहों और मकामी सैलानियों के लिए नया सयाहती तजुर्बा करने का बेहतरीन सयाहती मकाम भी होगा। इस मंसूबे को बांडीपोरा के लिए एक नए बाब की तरह महसूस किया जाता है। मकामी लोग चाहते हैं कि यहाँ भी सयाहत को फरोग मिले। जब से यहाँ व्यू पॉइंट बना है, गजीबो पॉइंट यहाँ जब बना है, तब से लोगों का रश यहाँ भी बढ़ने लगा है। हमारा रोजगार भी अच्छी तरीके से दिन पर दिन ठीक हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हम टूरिस्ट डिपार्टमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि वो पार्क 2-3 यहाँ से मेंटेन करे ताकि हमारा और भी शिकारा बढ़ने लगे। वुलर झील जो अपनी वसीओ अरीज और तारीखी अहमियत के लिए काफी मशहूर है, तवील अरसे से बांडीपोरा में जिंदगी का मरकज रही है। वुलर सिर्फ एक झील नहीं बल्कि ये कश्मीरी तारीख का एक अनमोल हिस्सा भी है। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने एशिया की सबसे बड़ी कुदरती झील के हसीन नज़ारों की तरफ सयाहों को राग़िब करने के लिए एक जामे मंसूबा तरतीब दिया है, जबकि इस मंसूबे का बुनियादी मकसद झील की कुदरती खूबसूरती के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आपको आज का शुमारा कैसा लगा? अपनी राय आप हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगला शुमारा इंशाल्लाह फिर लेके हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।